जैत सरी महला चौथा। घर पहला चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा हीयर रतन नाम हर बसिया। गुर हाथ धरियो मेरा माथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे। गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरा हीयर रतन नाम हर बसिया। गुर हाथ धरियो मेरा माथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे। गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। गुर पूरै हर नाम दृढ़ाया। बिन नावै जीवन बिरथा। रहाओ बिन गुर मूढ़ भये है मन मुख। ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण ना सेवे कबहु। तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे। तिन सफल्यो जन्म सनाथा। मोकौ कीजै दास दास दासन को। हर दया धार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी। क्यों चालह मार्ग पंथा। हम अंधले कौ गुर अंचल दीजै। जन नानक चलह मिलंथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी। क्यों चालह मार्ग पंथा। हम अंधले कौ गुर अंचल दीजै। जन नानक चलह मिलंथा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुर ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਏ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਆਵੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੇ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 696 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੈਤਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਰਾਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਵਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 4 ਬੰਦ ਨੇ। ਚੌਪਦੇ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ 4 ਬੰਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿੱਥੇ 4 ਬੰਦ 2-2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇੰਜ ਕੁੱਲ 10 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਚੂੰਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਆਕਾਰ ਬਣਾਏ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਟਿਕਾਏ ਵੀ ਤੇ तमाम ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ तमाम ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਚਲਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਏ। ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੀਅਰ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਮੇਰਾ ਹੀਅਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਵਸ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਔਗਣ ਵਸੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਰ ਵਸੇ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅੱਗੇ ਕੋਲੇ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਦਾਤੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ
ऐसा ज्ञान भर दिता, समझाया भी भलिया नाम एक कीमती रतन है, नाम अमोलक रतन है। मिलता किथों है, केड़ी हट्टी तो मिलता है? पूरा सतगुर पास। गुरु हाथ धरियो मेरा माथा। गुरु ने रहमत करके बख्शिश करके वो जो कीमती अमोलक रतन सतगुरु दे कोल सी ना, नाम अमोलक रतन है, पूरा सतगुर पास। मिलता किवें है? सतगुर सेवै लगे हाँ, कड रतन देवै प्रकाश। सतगुरु की सेवा विच जुड़ गए, संगत विच आ गए, असीस सतगुरु की मिल गई। हुण अंदर हिरदे विच वो नाम रतन वस गया। सालसराय जौहरी नूं गुरु नानक पातशाह जी आखिया सी, लाल ते बड़े परखे है ही, पर अपना जीवन परखिया कि नहीं परखिया? सुन सालस तू जौहरी ऐ, सालसराय तू जौहरी है, पर मेरी गल सुन। सुन सालस तू जौहरी, ऐ जौहरी तू अज तक बहुत सारे हीरे ते लाला नूं परखिया ते अपने कोल भी संभालिया, पर कूड़े लाल ना रतन बन, रब लैसी वस्त पछान। तू कूड़े रतन लाल ही ना पल्ले बनी रख, अंदर सच दे रतन नूं पहचानन दी कला बना। मैं बेनती कर दिया, वो गुरु की रहमत हो गई। मस्तक ते हथ रखिया, जिसके मस्तक हाथ गुर धरे, सो दास अंदेशा काहे करे। अगर गुरु की रहमत बख्शिश हो जाए, फिर अंदर दी सुरत विच वाहिगुरु 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 वस जांदा है जी। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। जन्मा जन्मां दे भैड़े पाप, जिंदगी नूं औगना नाल काले करन वाले पाप, वो जो अंदर वसे सी, उन्हां नाल दुख हो रहा सी। एक गल जरूर ध्यान च रखियो, दुख दा कारण पाप ने, वो कीते पापां दा फल दुख मिलदा है। जदों गुरु दी रहमत नाल नाम दा किनका अंदर वस जाए, ते पाप सारे धोते जांदे ने, नष्ट हो जांदे ने। जदों पाप चले जान ते दुख भी उतर जांदे ने। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। गुरु ने नाम दिता, हुण रिन करजा वो लै गया। एक गल ध्यान च रखियो, जिस वाहिगुरु दी कृपा नाल तन धन जह तो को दियो, ये करजा साडे सिर ते। रोज 24,000 सवास लै रहे हाँ जिस तो, ये करजा है उस मालिक दा। ते जदों सवासा नाल वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग पे, वो करजा उतर गया। भाई गुरदास साहब जी कहते ने, जैसे रिन दिन दिन उदम उदयाओ बिन, मूल ओ ब्याज बढ़े करत उपाध जी। ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होत जात, बिन सतगुर और बसै अपराध जी। करजा उतारिए ना, वो रोज करजे दा भार सिर ते वधदा है, वो ब्याज होर वधदा जांदा है। ते साहब जी एक गल समझाते ने, धन गुरु रामदास पातशाह जी, करजा रोज वधा ना, करजा उतार, करजा उतर जांदा है। जदों वाहिगुरु 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 जपे, ते जिस मालिक कोलों इतनियां दातां लईआं सी, मैं बेनती करा सुरखरू हो जाईदा, करजा उतर जांदा है। इस करके साहब दी रहमत बख्शिश हो गई। कहते ने अपना जीवन नाम सिमरन विच जुड़ गया। गुर नाम दियो रेन लाथा। एक मैं होर बेनती कर दिया, सिमरन अभ्यासी एक करजा रब दा उतार लैंदा है, सिमरन अभ्यासी एक करजा गुरु दा भी उतार लैंदा है। कदी ध्यान मारियो, गुरु तो किड्डियां दातां बख्शिश प्राप्त रहमत करके जीवन गुजार रहे हैं। कलगीधर दशमेश पातशाह जी ने अपना सरबंस कुर्बान करके इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार। किन्ना करजा साडे सिर ते।
अगर असी गुरु वाले बन जाइए गुरु का करजा भी उतर जाता है। अगर सिमरन करन लग जाइए वाहिगुरु का करजा भी उतर जाता है। एक गल होर ध्यान च रखियो, मां बाप का भी साडे सिर ते बहुत करजा है। मां बाप की इज्जत ते सेवा करिए ते मां बाप का भी करजा उतर जाता है। मालिक रहमत करन गुरसिख बनिया, फिर मां बाप की इज्जत की। फिर काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम स्यो। जिनके जने बडीरे, जिन्हां ने जनिया जन्म दिता साडे वडेरे, तिन स्यो झगरत पाप। वो मां बाप का करजा भी उतार लैंदा है। गुरसिख बन गया, नाम सिमरन अभ्यासी बन गया। हुण कहंदे ने जीवन सुरखरू हो गया है जी। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। अपने आप नू समझाइए, जदों बाणी पढ़िए ते अपने आप नू आप संबोधक होइए। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। तू चाहता है मेरियां लोड़ां पूरियां हो जान, मेरे अर्थ पूरे हो जान, मेरे मनोरथ पूरे हो जान। साहब कहंदे ने सिमरन करन वाले दे सारे अर्थ, सारियां लोड़ां, सारियां इच्छावां पूरियां हो जांदियां। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध। प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। कुछ ओ ने जो संसार विच अपना दुख निवारण करना चाहते हैं। उन्होंने कहते ने अर्थार्थी, आरत, जिग्यासु ते ज्ञानी। चार तरह के भगत ने, ध्यान च रखियो। एक आरत ने, दुखीए ने, वो दुख दूर करना चाहते ने। एक गल ध्यान च रख लियो, परमात्मा दे सिमरन कीतियां सारे दुख चले जाते ने। एक वो ने जेड़े कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई सुख लभदे ने, उन्होंने कहते ने अर्थार्थी। कोई अपना अर्थ पूरा करना चाहते ने। साहब कहते ने इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाकै वस है काम तेना। सो ऐसा हर ध्याइया मेरे जीड़े, तां सर्व सुख पावैं मेरे मना। इस करके ऐ मेरे मन, अगर तू दुख दूर करना चाहता है तेरी ये भी लोड़ पूरी हो जाएगी। अगर तू कुछ संसार की सुख संपदा प्राप्त करनी चाहता है तेरी वो भी लोड़ पूरी हो जाएगी। एक ने जिग्यासु, जेड़े परमात्मा की भगती करना चाहते ने, अपने आप नू जीवात्मा रूपी पत्नी बना के परमात्मा नू पति बना के मिलना चाहते ने, उन्हां दी भी जिग्यासा पूरी हो जाती। एक ज्ञानी ने जेड़े चाहते ने वाहिगुरु जी नाल एकमिक हो जाइए, उन्हां दा भी अर्थ पूरा हो जाता है। तू वाहिगुरु दा सिमरन कर, मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। गुर पूरै हर नाम दृढ़ाया, बिन नावै जीवन बिरथा। वाहिगुरु जी की बख्शिश रहमत हो गई, पूरा गुरु मिल गया। धन गुरु ग्रंथ साहब जी की संगत मिल गई। इन्हां की कीता? गुर पूरा हर नाम दृढ़ाया। इन्हां ने नाम दृढ़ करा दिता। सतगुर नाम निधान दृढ़ाया, चिंता सगल बनासी। एक हुंदा है टीचर कोलों सबक लेना, लैसन लेना। एक हुंदा है लैसन पक्का कर लेना। ध्यान च रखियो, गुरु लैसन देंदे भी ने, सबक देंदे ने। नाम जपना चाहिए ते बार बार नाम दी प्रेरणा दे दे के, नाम दी महिमा दरसा दरसा के नाम पक्का भी करा रहे हैं। ते सतगुरु ने रहमत की थी। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया ते ये गल समझाई, बिन नावै जीवन बिरथा। अगर नाम नहीं जपिया ते नाम तो बगैर जीवन व्यर्थ खाली चला जाता है। इस करके आओ एक गल अंदर पक्की कर लईए,
अगर नाम सिमरन नहीं करांगे, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवै साकत नाम विसारी। इस करके नाम विसारना नहीं, नाम तो बिना श्वास खाली चले गए, जीवन दी शक्ति अजाई चली गई, अखां दी देखण दी ताकत अजाई गवा लई, कन्नां दा सुनना वो भी अजाई गवा लिया, पैरां दा चलना भी अजाई गवा लिया, हत्थां नाल जो पकड़िया ते छड्डिया अजाई शक्ति गवा लई। इस करके नाम तो बगैर जीवन व्यर्थ चला जाता है जी। रहाओ शब्द दे केंद्री भाव नूं संबोधित करदियां सतगुरु रहाओ दा उचारण करदे हन जी। बिन गुर मूढ़ भये है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा। बिना गुरु तो बाणी नहीं पढ़ी, गुरु वाले नहीं बने, संगत विच नहीं आए, गुरु दा उपदेश अव्वल सुनिया नहीं, ये सुनिया ते कमाया नहीं। वो बिन गुर हन, वो मूढ़ ने, वो मनमुख ने, वो रोज मोह माया विच पए फसदे ने। बिन गुर मूढ़ भये है मनमुख, मन नू मुख रख के चलना कि गुरु नू सन्मुख रख के चलना, गुरु दे मगर लगना कि मन दे मगर लगना। ये जरूर फैसला करियो। मन जिधर ले जाएगा औगन विकार होणगे, गहरी खड्ड होवेगी, अज्ञानता होवेगी, वो दुख दा राह होवेगा, ते गुरु जिधर ले जाणगे वो आनंद होवेगा, वो भटकना मुकाउण वाला होवेगा, मंजिल ते पहुंचाउण वाला रस्ता होवेगा। इस करके जो लोग गुरु तो बिना जी रहे ने, ये गल ध्यान च रखियो। गुर मंत्र ही नस्य जो प्राणी, त्रिघंत जन्म प्रश्न न, कुकर है सूकर है, गर्द पह है, काक है, सर्प न है, तुल खल है। बिना गुरु तो वो मूढ़, वो अपने मन नू अगे रख के चलन वाले मनमुख मूर्ख ते मोह माया नित फाथा, नित रोज होर माया दा मोह अंदर वसाया, रोज अंदर होर औगन वसाए। नित नित करना की सी, मेरे मन नाम नित नित ले। नित की करना सी, नित उठ गावो प्रभ की बानी, नित उठ गावो प्रभ की बानी। नित दा एक नियम बनाना सी, उन्होंने कहते ने नित नेम, रोज दा एक पक्का नियम बन गया। मैं अमृत वेले गुरु दे हुक्म अनुसार नित उठ गावो प्रभ की बानी, मैं रोज बानी जपनी है, नितनेम करना है। गुरु दा हुक्म है, मेरे मन नाम नित नित ले, नित नाम लेना है। नित धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की संगत करनी है। पर उन्होंने गुरु तो विछड़िया होया ने रोज मोह माया विच फसना कर लिया जी। तिन साधु चरण ना सेवे कबहु, तिन सब जन्म अकाथा। तिन साधु चरण ना सेवे कबहू, इत्थे साधु तो मुराद है गुरु। गुरु दी सेवा विच आउणा सी, गुरु दी चरण शरण विच आउणा सी, वो ना आए, गुरसंगत ना कीती, सत्संगत विच ना बैठे, ते उन्होंने अपना जीवन हजूर कहंदे ने अकाथा किसे काम ना आया। अकारथ दा इत्थे संखेप है अकाथा। अकारथ चूंकि जिंदगी दा जीवन स्वार्थ विच परमार्थ विच बतीत करना सी, वो परमार्थ ना सवारिया ते अकारथ ही जो कुछ दौड़ भज कीती इत्थे ही रह गए, वो नाल कुछ ना गया।
इस करके साहब कहते ने तू किरत कर, काम कर, व्यापार कर, पैसा कमा, परिवार बना, पर जिसने सब कुछ दिता है उसनू ना विसार। अंदर उसका शुकराना करके शरीर का संबंध संसार नाल रख, पर शरीर का संबंध गुरसंगत नाल भी रख, अमृत वेले नाल भी रख, ते अंदर दी सुरत विच वाहिगुरु शब्द वसा। जिंदगी परमार्थ वल वले, ना कि जिंदगी अकारथ ही मनमुखां दी तरह बीत जाए जी। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफलियो जन्म सनाथा। जिन्हां ने गुरु चरनां विच आउणा कर लिया, जिन्हां ने रोज गुरु ते उपदेश नूं अंदर सेवन कीता, हजूर कहंदे ने उन्हां दा सारा जन्म जिहड़ा सी ਉਹ सनाथा बन गया, मालक वाले बन गए। एक शब्द है अनाथ, एक शब्द है सनाथ। आज कई थावां ते तुहानूं मिलणगे अनाथ आश्रम, जिन्हां दी मां बाप भैन भरा रिश्ते नहीं हैं, उन्हां नूं अनाथ आश्रम विच जगह दिती जाती। पर मैं बेनती करा, अनाथ आश्रम विच रहन वाला बच्चा भावें रोटी पानी खान लग जाता है, पर मां बाप उथे भी नहीं मिलते, भैन भरा उथे भी नहीं मिलते। पर गुरु का एक दर ऐसा है जिथे सानू असली माता पिता दे देते। हरजी माता, हरजी पिता, इत्थे असली माता पिता मिल गए। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता। और गल सच करके जानियो, वो सनाथ हो गए, मालक वाले बन गए। हुण सानू कोई फिक्र नहीं रह गया। हुण बांह मालक दे हाथ फड़ा दिती, वो साडे हर कदम ते सहाई बन गए। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफलियो जन्म सनाथा। उन्हां दा जन्म सफला हो गया, वो सनाथा बन गए, मालक वाले बन गए जी। मोह कहो कीजै दास दास दासन को, हर दया धार जगन्नाथा। वाहिगुरु जी मेरी अरदास है, मैनू जेड़े आप जी दे दास बन गए, अगों फिर उन्हां दासां दे जेड़े दास बन गए, उन्हां दासां दा भी मैनू दास बना लेना, ताकि मैं दुनिया दी रोहो रीत वल ना चलां। जेड़े आप जी दे दास बन गए ने, मैं उन्हां दे मगर चलां। मैं सिमरन नितनेम सेवा सतसंगत ते शुभ गुण वालियां वर्गा जीवन बना लेवां। मोको कीजै दास दास दासन को, हर दया धार जगन्नाथा। ऐ सारे जगन दे नाथ, सारे संसार दे मालक, मेरे ते कृपा कर दियो। आप ते सारे संसार नू जीवन देने वाले हो, जग जीवन हो, तो मैनू भी जीवन बख्शिश कर दियो। एक जीवन शरीर दा है, एक जीवन आत्मक जीवन है, वो कृपा कर दियो। मेरा आत्मक जीवन बन जाए ते मेरे ते ऐसी दया कृपा दृष्टि कर दियो जी। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चल है मार्ग पंथा। हम अंधले अंधे ये ना आखियन, जिन मुख लोयन ना है, अंधे से ही नानका जे खसमों कुथे जाहे। उन्होंने अंधे ना आखियो जिन्हां दे चर्म चक्षु नहीं, जिन्हां दियां चमड़े दियां अखां नहीं। मालिक साडी बुद्धि दी एक अख है, अंदर हिरदे विच देखण वाली एक अख है। अगर उस अख नाल असी आप जी दा दर्शन नहीं किया, इन्हां अखां नाल दुनिया देखी, लोयन लोई डिठ, प्यास ना बुझै मूह कहनी, नानक से अखड़ियां बयान, जिन्नी दिसंदो मां पिरी। यही अखियां जो पेख प्रथम अनूप रूप, कामना पूर्ण कर सहज समानी है।
यही अखियां जो बिशरत प्रिया प्राणपति, बिरह वियोग रोग पीरा के प्राणी है। नासिका श्रवण रसना में अगर भाग होती, यही अखियां जो सगल अंग में बिरानी है। भाई गुरदास साहब जी कहते ने यही अखां ने ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਸਿਕਾ ਸ਼ਰਵਣ ਰਸਨਾ में अगर भाग होती, ਨੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੱਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣੀਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਕੰਨ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਿਕਾ ਸ਼ਰਵਣ ਰਸਨਾ में अगर भाग होती, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਮਿੱਠਾ ਕੌੜਾ ਚੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਰਸ ਲੈ ਸਕਣ, ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਧਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਗਰ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, साडे कोल ज्ञान नहीं, हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। मैं बेनती करांगा, एक हुंदा पथ रस्ता, एक है पंथ। पथ है जो एक घर तो दूजे घर नूं मिले, एक शहर तो दूजे शहर नूं मिले, एक देश तो दूजे देश नूं मिले। वो तीन तरह दे राह ने, एक जमीन का रस्ता, एक समुद्री रस्ता है, एक हवाई रस्ता है। वो पथ है। पर जो पंथ है, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक गल ध्यान च रख लियो, एक पंथ है, लहने पंथ धर्म का किया। जो धर्म का पंथ है, चूंकि आज्ञा पही अकाल की, तबे चलायो पंथ। वो जो धर्म पंथ सी, जो उत्तम पंथ सी, जो खालसा पंथ सी, अगर असी उस पंथ नू नहीं वेखदे, उस राह ते नहीं चलदे, ते साहब कहंदे ने फिर हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। फिर असी इस धर्म पंथ ते अगर नहीं चलदे, हम अंधले हाँ, ज्ञानहीन हाँ, असी अज्ञानी हाँ जी। हम अंधले कौ गुर अंचल दीजै, जन नानक चलह मिलंथ। सानू अंधले नू पातशाह अपना पल्ला फड़ा दियो। मैं बेनती करांगा, एक है नेत्रहीन होवे, उस नू कोई अपना कपड़ा अपना पल्ला फड़ा दे ते आखे मेरे मगर मगर चलिया आ। एक है गुरु दा पल्ला, जो कि असी शब्द दे पल्ले लग गए, असी नाम दे सिमरन दे गुर मर्यादा दे उस पल्ले नू फड़ लिया। पर साहब कहंदे ने अरदास करियो, सानू अंधियां नू पातशाह अपना पल्ला फड़ा देना। चूंकि पल्ले मैं तैंडे लग गई, मैं आप जी दे पल्ले लग गई हाँ, रहमत कर दियो। जिवें जिवें समझाओ समझा, जिवें जिवें चलाओ तिवें तिवें चलां, जिवें जिवें नाम जपाओ नाम जपां, जिवें जिवें सेवा दा राह दर्शाया जे सेवा करां, जिवें जिवें निमरता आदक शुभ गुण भरे जे, सत संतोख दया धर्म ते धीरज, ओ पल्ले बन्ना। किरपा कर दियो, मैनू अपने पल्ले अपना अंचल फड़ा के इस भाव सागर तो पार कर देना जी। ये अज दे पावन हुक्म दी विचार है। आओ चल रही सिद्ध गोष्ठ बाणी दी विचार, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन बोल, उन्होंने श्रवण करिए जी। गुरमुख चूकै आवण जान, जो गुरमुख बन गया, मुख गुरु वाल हो गया, गुरु दा राह अपना लिया, उन्हां दा आउणा जाना जमना मरना मुक जांदा है। जन्म दुखियं
मरण दुखियं संसार दुखियं पुना पुना। अदीब कहता है जम्मन दा भी बड़ा भारी दुख ते मौत दा भी बड़ा भारी दुख ते जन्म तो लैके मरण तक सारा जीवन नानक दुखिया सब संसार। रहमत हो जाए गुरु वाले बन जाइए। मन दा मुंह गुरु वाल हो गया। हुण आना जाना जमना मरना मुक गया। आवन जान रहियो तपत कड़ाहा बुझ गया। गुर शीतल नाम दियो। गुरु नानक पातशाह जी रहमत कीती सी जे कौडे राकश ते नजर भर के तकिया ते उबलदा सड़दा बलदा कड़ाहा ठंडा कर दिता। रहमत कर दियो साडे ते नजर पा दियो। अंदर औगण विकारां दी बलदी अग शांत हो जाए ते जीवन जम्मन मरण तो मुक्त हो जावे जी। गुरमुख दरगह पावै मान। जदों गुरमुख बने गुरु वाले बने बानी नाल जुड़े नितनेम कीता शरीर छड्ड के जीवात्मा परलोक गई। रब दी हजूरी विच उस नूं सन्मान मिलिया। नाम ते आयन साजना जन्म पदार्थ जीत। नानक धर्म ऐसे चवै कि तो भवन पुनीत। चुके सिमरन करके जिंदगी दी बाजी जित के गए ते नानक धर्म। इत्थे धर्म दा अर्थ है धर्म राज। ऐसे चवै चवै दे अर्थ ने बोलदा है सिंधी भाषा दा शब्द है चवै। धर्म राज इंज बोलदा कि तो भवन पुनीत। धन है ऐ जीवात्मा तुसी परलोक विच मेरे भवन नूं मेरे लोक नूं पवित्र कर दिता। चुके रे दरगह कह न को आओ बैठ आदर शुभ देऊ। ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरण न होए बिनासा। इस ढंग नाल ओ साहब दी हजूरी विच सन्मानिया जांदा है जी। गुरमुख खोटे खरे पछाण। गुरमुख बन गए गुरु वाले बन गए। गुरु द्वारा ज्ञान आ गया। हुण खोटे ते खरे दी पहचान आ गई। पहला हालत की सी खोटे को खरा कहे खरे सार ना जाने। अंधे का नाव पारखू कली काल वडाना। खोटे नूं खरा कहंदा सी खरे नूं खोटा कहंदा सी। हुण ते खोटे खरे दी पहचान आ गई। खोटा की है ध्यान च रख लियो। ये जितना औगण विकारां दा आल जंजाल हीरा फेरी ठगी चोरी धोखा ये सब खोट है। तू खोट ना इकट्ठा कर। मैं बेनती करा साहब कहंदे ने खरे दी पहचान कर भी खरा की है। बाहर असी झट पहचानदे। कीमती वस्तु जितनी महंगी खरीदनी होवे उतनी पहचान ज्यादा करते हैं। सोना खरीदन लगे हैं ये खरा है कि खोटा है। ध्यान च रखियो कोई करंसी लैन लगे हैं ये 500 का नोट ये 2000 का नोट खोटा है कि खरा है। झट पहचानते हैं। अज हर व्यापारी नूं पता है। मैं बेनती करा वो सामने नोट नूं ध्यान नाल देखदे ने खोटा है कि खरा है। भलिया जेड़ा बाहर दे गले विच रखना है ही उस नूं पहचानदा है। जो दिल दे गले विच संभालना है ही उस नूं भी पहचान भी मैं खोट ते नहीं अंदर इकट्ठा करी जा रहा। गुरमुख खोटे खरे पहचान। चूंकि रब दी हजूरी विच मैं बेनती करा खोटे दरगाह सटी है। उथे खोटे नहीं प्रवान होने उथे खरे प्रवान होने ने। इस करके अज सतगुरु दी शरण विच आके एक अरदास कर देना भी सतगुर खोटियों खरे करे। पातशाह खोट ते नहीं चलना पर तुसी खोट नूं खरे कर सकदे हो। साहब दी रहमत होवे गुरमुख खोटे खरे पछाण वो खोटे ते खरे दी पहचान कर लेंदा है जी। गुरमुख लागै सहज ध्यान। जो गुरमुख है वो सहज ध्यान विच जुड़ जांदा है। कठन ध्यान नहीं लाउणा। सवास चढ़ाउणे सवासां राही इड़ा पिंगला ते सुखमना दी साधना विच जाना। मैं बेनती करा ये है कठन ध्यान
ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਸਹਿਜੇ ਆਵੇ ਸਹਿਜੇ ਜਾਏ। ਉਸ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਠਿਨਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੌੜ ਭੱਜ ਸਰੀਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧੇ ਵਸਿਆ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਸਿਆ। ਧਿਆਨ ਧਰੋਂ ਤਹ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ, ਜਹ ਕੋ ਅਮਿਤੋਜ ਸਭੈ ਜਗ ਛਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਟਿਕਿਆ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਔਗਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿਰੰਜਨ, ਜੋ ਅੰਜਨ ਕਹੀਏ ਕਾਲਖ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਸ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਉਹ ਐਸੇ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ, ਦੂਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੋ ਹੋਵੈ। ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਨਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। चूंकि मेरे सर को रुतबा तेरे दर से मिला है, यूं तो ये सर भी तेरे दर से मिला है। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से ही मिला है। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੈ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੂੜ ਕੁਬਾੜੇ ਨੇ ਲਪੇਟ ਲਿਆ।
इस दा मतलब कि जे सच्चे विच समाया नहीं, अजे सच्चे दी गल बार बार रह गई है। पर जदों पूर्ण तौर ते अंदरला आपा वाहिगुरु विच लीन हो गया, हुण हर वेले सच्चे विच ही अपना आपा एक मिक करी रखदा है जी। गुरमुख साच नाम पत ऊतम होए। गुरमुख सच्चे नाम विच है, उस दी पत इज्जत उत्तम है। ये गल थोड़ी ध्यान च रखियो। माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम ना होए, इज्जत ते माया धारियां नूं भी मिलदी है, पत ते उन्हां भी बनदी है, पर 4 दिनां दी है। गल ध्यान च रख लियो। पर जिहड़ी वाहिगुरु सिमरन अभ्यासी दी पत है, वो उत्तम पत है, वो श्रेष्ठ इज्जत है, जो लोक विच भी रहिंदी ते परलोक विच भी, जो गुरु दी नज़र विच भी ते रब दी नज़र विच भी इज्जत सदा बनी रहती है जी। नानक गुरमुख सगल भवन की सोझी होए। धन गुरु नानक पातशाह कहते ने, उस गुरमुख नू सगल भवन की सोझी होए। वो जानता है त्रे भवन में रिहा समाए। वो सारे भवनां विच हर थां ते, मैं बेनती करा हर देश विच, इस लोक विच ते परलोक विच, वो जानदा भी इको एक अकाल पुरख वाहिगुरु ही सब थां ते है। उस नूं सारे भवनां दी सोझी हो जांदी। ये साहब रहमत करन, गुर शब्द नाल जुड़दियां अपना आपा शब्द विच समो जाए, धर्म की जिंदगी बने, ताकि लोक परलोक सुहेले होवन जी। इन्हां अखरां नाल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, श्री गुरु रामदास पातशाह जी के पावन दर का कोटान कोट धन्नवाद करदे हां। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान साहब, सारे प्रबंध का तह दिलों बहुत बहुत धन्नवाद। सिंह साहब मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहब, सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी लुधियाने वाले, तिन्हां दा तह दिलों बहुत बहुत धन्नवाद। आईयां संगतां दा हार्दिक तौर ते हथ जोड़ जी आया कहंदे हां, बहुत बहुत धन्नवाद। आओ शब्द दियां 2 पंक्तियां श्रवण करके फतेह नाल सांझ पाइए जी। गुरमुख साच नाम पत ऊतम होए। नानक गुरमुख सगल भवन की सोझी होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।